everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concept. In this video, we are going to solve question around the three concepts: energetics of electronic transition, which is very important, and then positronian atom we will be talking about. This basically gets formed by a combination of electron and positron. They are basically anti-particle of each other, right? And then electron capture we will talk about. देन तीनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इन दोनों को मिक्स करके वी हैव गॉट क्वेश्चन इन JEE Advanced. So basically, I got request for this one, and we should really thank him for asking this particular thing because that is why I decided to make this one. Okay, so this is going to be very informative, I must say, and five questions we will be dealing with, and three of which I've selected from SBT. Sorry, two of which one is PYQ basically, and another two are from Anurag Misra sir book. Okay. तो चलो स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है टू हाइड्रोजन एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट विथ इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन n इक्वल टू 2 सो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है लेट अस से दिस इज k cell and then this is L cell so electron is in L cell that is n equal to 2 first one is moving towards left and emits a photon of energy even towards right अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में है and whenever electron is in excited state it won't stay there for longer amount of time, right? Within 10 to the power minus 8 second it will jump back to the ground state. Sorted. So हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम दो हाइड्रोजन एटम है दे आर इन एक्साइटेड स्टेट सो डेफिनेटली दे विल जंप बैक टू द ग्राउंड स्टेट, राइट? सो फर्स्ट वन जो फर्स्ट एटम है एक्साइटेड स्टेट में दैट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट and emits a photon of energy even towards right. And when electron will jump from excited to the ground state, what will happen? जैसे यहाँ से यहाँ आता है, then energy equal to this gap will be released in form of photon, right? So in form of light, you will say. Then, so first case में क्या हो रहा है? This atom in the excited state was moving towards left and emits a photon of energy even towards right. Now, what is the meaning of energy getting released even towards right? Because when photon is getting released, we talk about momentum of photon, right? So h by lambda. So when we are saying that this photon of energy even is getting released towards right, it means that photon has momentum towards right. Okay, so ये जो energy release हुआ है while this atom moving towards left is trying to come back to the ground state, जो energy release हुआ है has momentum towards right, you can say, and this has an energy value of how much? Even. एंड अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी f1 लेते हो then I will say E1 is equal to how much? hf1 and momentum of this released photon will be how much? That will be your h by or let's say wavelength is lambda 1 so this is h by lambda 1. This is the momentum of photon, that is how we define it. Then अब देखो सेकंड के साथ क्या हो रहा है, सेकंड वन इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ये भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? So this excited atom, I mean its electron is in n equal to 2. So this excited hydrogen atom is also moving towards left. And then while trying to come back to the ground state, it emits a photon of energy E2 towards left. और इस केस में जो फोटोन रिलीज हो रहा है while it is trying to come back to the ground state, वो फोटोन तुम्हारा लेफ्ट की तरफ इमिट हुआ है. इट मींस इट हैज अ मोमेंटम टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज h by lambda 2 will be in this direction, ठीक है? And its energy is equal to how much? E2. Now we are getting asked relationship between E1 and E2. अब आप ये सोच रहे होगे जैसे देखो हमने सिंपल जो पढ़ा है ना, जैसे जो सिंपल क्वेश्चन करते हैं बेसिक अप्रोच पे करते हैं वहां कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन होता है. जैसे हमें पता है जब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे जब वो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इट विल गो अप बाय रिसीविंग दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड व्हाइल इट विल कम बैक it will release the same amount of energy, but actually energy released is not exactly equal to the energy gap. उससे थोड़ा कम होगा. क्यों कम होगा? सपोज कर लो मैंने एटम की बात करी, दिस इज एट रेस्ट हाइड्रोजन एटम, and let's say because it received certain energy in form of heat, let's say, and because of that its electron jumped from ground state to excited state. अब क्या करेगा? excited state से जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है that will come back to the ground state releasing photon. और ये जब फोटोन को रिलीज कर रहा है इट मींस सम मोमेंटम इज कमिंग इन द सिस्टम. सिस्टम क्या है तुम्हारा? सिस्टम है हाइड्रोजन एटम.
एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जंप किया एंड देन इट इज ट्राइंग टू कम बैक, एंड इन दिस प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, फोटोन इज गेटिंग रिलीज्ड। सो अगर ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है इसका मोमेंटम इधर की तरफ है, दैट इज एच बाई लैम्डा, देन दिस हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट विल रिकॉइल। जैसे गन से जब आप बुलेट को फायर करते हो तो गन रिकॉइल करता है। क्यों करता है? क्योंकि पहले गन के अंदर तुम्हारा बुलेट था, गन एंड बुलेट तुम्हारा कैसा सिस्टम था, रेस्ट में था, डन है। सो ये रेस्ट में था। नाउ व्हेन यू pull the trigger, what happens, bullet comes out with certain momentum, and resultant of which is what, reaction of which is what, gun recoils back maintaining momentum equal to zero। क्योंकि जो भी हो रहा है इंटरनल चीजें हो रहा है, एक्सटर्नली नथिंग इज हैपनिंग, सो मोमेंटम विल स्टे कंजर्व्ड, राइट। सो बेसिक मैकेनिक्स है। और यहाँ पे सेम चीज हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मैंने सिंपल समझाने के लिए आई सेड कि हाइड्रोजन एटम इज एट रेस्ट, और ये रेस्ट में था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापस आएगा, फोटोन इमिट होगा, और जब फोटोन इमिट हो रहा है इट मींस मोमेंटम इज गेटिंग क्रिएटेड, राइट, एंड दैट हैज अ मोमेंटम लेट्स से टुवर्ड्स राइट ऑफ द वैल्यू h by lambda। So this hydrogen atom will recoil in this direction while its electron will come back to the ground state, and it will have certain velocity such that its momentum of hydrogen getting created or because of recoiling thing will be equal to h by lambda, डन है। सो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये रिकॉइल किया तो हाइड्रोजन एटम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, डन है। सो इनिशियली इसके पास एनर्जी कितना था, अब चलो एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। सो ये एटम था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में। सो ये एटम जरूर एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा, कितना, इक्वल टू दिस गैप, देन ओनली इलेक्ट्रॉन वाज एबल टू जंप हियर। तो चलो इसने इनॉड अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब किया, तो जंप किया, वापस से ये क्या होगा, यहां से नीचे की तरफ वो गिरेगा। when it will try to come back, ideally inode amount of energy should get released in form of photon, जो कि हम कहते हैं, but there we somehow we are neglecting this recoiling thing, डन है। सो फोटोन तो इमिट होगा लेकिन उसकी एनर्जी इनॉट से कम होगी, डन है, क्योंकि सम ऑफ एनर्जी इज गोइंग इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो जस्ट इमेजिन आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तुम्हारे पास क्या एनर्जी है सिस्टम के पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन, डन है। एंड ये पूरा इनोड के बराबर ही होना चाहिए बिकॉज दिस इज व्हाट इट इनिशियली अब्सॉर्ब्ड, राइट। सो एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ इनोड समवॉट, because kh is not zero, it is something, even if negligible it is something, right? So e photon is less than that of what, inode। that is what is important in order to answer this question। अब आप इस क्वेश्चन में आ जाओ। आप ध्यान से सोचो, हमारे क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारे पास दो एटम है, दोनों सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, दैट इज n इक्वल टू 2। सो दोनों ही एटम इन ग्राउंड स्टेट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा, लेट्स से ई नॉट, एंड इन दोनों एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद दोनों ही किस में चला गया, तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में। ये भी एक्साइटेड स्टेट में है और ये भी तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में। वापस से क्या हो रहा है, ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है फर्स्ट, देन व्हाट इज हैपनिंग, आई मीन यहाँ पे एनर्जी इवन रिलीज हो रहा है, लेकिन मोमेंटम पे आप फोकस करो, h by lambda 1 मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन। जब ये एक्साइटेड था, इन दैट केस व्हाट वाज द मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन एटम इज नॉट एट रेस्ट, सो तुम्हें थोड़ा और केयरफुली चीजों को एनालाइज करना है। सो एक्साइटेड स्टेट में जब ये था, इसकी मोमेंटम इधर है, लेट्स से दैट इज एम वी नॉट। सेकेंड एटम का भी एक्साइटेड स्टेट में सेम मोमेंटम है, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है विद सेम वेलोसिटी, सो एम वी नॉट, दोनों का मोमेंटम सेम है। और देखो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, इंटरनल थिंग हो रहा है, मोमेंटम शुड स्टे कंजर्व्ड, राइट। सो दिस इज इन द एक्साइटेड स्टेट, इसको मैं यहीं पे लिखती हूँ। अब चलो इधर बात करते हैं, व्हेन इट हैज जंप टू द ग्राउंड स्टेट। सो ये इधर की तरफ है और इसका मोमेंटम इधर है, इस एटम का, and then there is one photon in this direction having momentum h by lambda 1, डन है। इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इनिशियल मोमेंटम क्या है, m v नॉट, फाइनल मोमेंटम तुम्हारा क्या होना चाहिए, इसका वेलोसिटी लेट से v1 हो गया, डन है। v1 शुड बी ग्रेटर देन v नॉट, क्योंकि m v नॉट नाउ शुड बी इक्वल टू m v1 माइनस h by lambda 1, समझ रहे हो। डेफिनेटली v1 इज ग्रेटर देन v नॉट, राइट। अब आप सेकंड केस में चले जाओ, सेकंड केस में क्या हो रहा है। फोटोन जो इमिट हुआ है उसका मोमेंटम इधर की तरफ है h by lambda 2,
and let's say इसकी velocity after recoiling is v2. Okay, so this is having velocity v2. अब आप सोचो क्या होगा। अगर आप सोचते हो, आपको पता है इसका इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट है, फाइनल मोमेंटम इज एम वी टू प्लस एच बाई लैम्डा टू। सो क्लियरली v2 इज व्हाट, v2 इज लेस देन v नॉट। सो यहाँ से हमें क्या मिला, v2 इज लेस देन व्हाट, v नॉट। ओके, अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें सिंपल चीज ये समझ में आता है कि जो हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था दोनों ही हाइड्रोजन एटम का, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी किसका इंक्रीज हुआ है, आप वो चेक करो, फर्स्ट का इंक्रीज हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट केस हैज इंक्रीज्ड। डन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एनर्जी उसने इनॉट अब्सॉर्ब किया था, इनॉट जो अब्सॉर्ब किया था उसका कुछ पोर्शन तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम में गया है। यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा फोटोन की एनर्जी जो E1 रिलीज हुई है विल बी लेस देन दैट ऑफ E2। क्योंकि देखो आप इस एटम की बात करो, इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज व्हाट, हैज डिक्रीज्ड। सो ये डिक्रीज होकर एनर्जी गया कहाँ, कहाँ गया, फोटोन के एनर्जी में ही जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हुआ कहाँ से आया, जो जंप करने से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वही एनर्जी को इसने कुछ ना कुछ ले लिया। जो फोटोन रिलीज होगा उसका एनर्जी गैप से कम होगा, समझ रहे हो। सो समथिंग like this is happening. So kh2 is has decreased, and here energy released is what, E2. So you will clearly say that E1 is less than that of E2। क्योंकि देखो रिकॉइलिंग के टाइम पे यहाँ पे जो एनर्जी था वो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिकॉइलिंग के टाइम पे जो हाइड्रोजन एटम के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी था वो भी कुछ ट्रांसफर हुआ है टुवर्ड्स दैट फोटोन थिंग। ओके, so E2 will be definitely greater than that of E1। So answers would be what, answers would be your E1 less than E2। समझ रहे हो। आप इसको सिंपल वे में भी एक्सप्लेन कर सकते थे, मैंने इतना वक्त लिया क्योंकि मुझे पता है कि मे बी आप लोगों के लिए नया हो, सो आई नीडेड टू गिव मोर टाइम। लेकिन आप रिकॉइलिंग को ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में तुम्हारा क्या हुआ, इधर की तरफ फोटोन क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, इसका मतलब एटम रिकॉइल इधर करेगा, इट मीन्स रिकॉइलिंग फोर्स इधर मिला है, तो इधर का मोमेंटम इंक्रीज होगा, समझ रहे हो, तो V1 बढ़ेगा सॉर्ट ऑफ। और यहाँ पे देखो फोटोन इधर की तरफ निकला है, ये एटम रिकॉइल करेगा, यानी कि इस पे रिकॉइलिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि ओरिजिनल वेलोसिटी से ऑपोजिट फोर्स लगा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन प्रोसेस। डेफिनेटली वी नॉट से वो V2 की तरफ जाएगा विच इज लेस देन V नॉट, एंड यहाँ पे V नॉट से V1 की तरफ जाएगा विच इज V1 is greater than V naught, क्योंकि force, recoiling force is acting in the direction of original motion of hydrogen atom। समझ रहे हो। डेफिनेटली इस केस में काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम की इंक्रीज होगी और इस केस में डिक्रीज होगी। फोटोन की एनर्जी यहाँ पे तुम्हारा कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा, समझ रहे हो। आई होप यू गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो हम बात करते हैं ना कि गैप के बराबर एनर्जी रिलीज होगा, वो हम तब कहते हैं व्हेन वी नेग्लेक्ट दिस रिकॉइलिंग थिंग हैपनिंग, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सोच द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक इमेजिनरी एलिमेंट X। Hc value is given as this। The ionization energy of the element X is 4 electron volt। यहाँ पे कोलिजन जैसी कुछ बात नहीं हो रही है, एटम की रिकॉइलिंग एंड एवरीथिंग उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सिंपली वी डोंट हैव टू गो टू दैट स्पेक्ट्रम, राइट, हमें उस तरफ से सोचना ही नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स क्या होगा, देखो ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइज करने का मतलब फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में है तभी इन सारे स्टेट्स की एनर्जी नेगेटिव है। जहां पे एनर्जी जीरो है, it means what, it means electron present here is not under the influence of electrostatic force of nucleus, then so you can say it is free from the atom's influence, so you can say the atom is ionized in that case। Electron has been successfully knocked out। -4 electron volt से 0 electron volt तक आपको ले जाने के लिए how much energy you should be providing to the atom, equal to 4 electron volt, right। Basically ionization energy क्या होता है, energy required to knock electron out
from its its आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट वन इलेक्ट्रॉन विल लाई वेयर n इक्वल टू 1। So ionization energy is energy given to knock out the इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट सेल, राइट। सो हाइड्रोजन के लिए आउटरमोस्ट सेल इज n इक्वल टू 1, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। सो यहाँ से तुम्हें इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है, दैट इज n इक्वल टू 1 से। सो n इक्वल टू 1 में -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसको 0 तक ले जाना है, कितनी एनर्जी दोगे, प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज करेक्ट। नाउ बी की तरफ बढ़ जाओ आप। एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट अब्सॉर्ब्स द फोटोन। ओके, सो एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, इट इज अब्सॉर्बिंग अ फोटोन, कम्स टू एन एक्साइटेड स्टेट। ओके, सो बिकॉज ऑफ अब्सॉर्बिंग फोटोन इट इज रीचिंग टू एक्साइटेड स्टेट, देन एमिट्स द फोटोन विथ अ वेवलेंथ ऑफ दिस मच। सो इस वेवलेंथ का मतलब एनर्जी कितना हुआ वो आप निकाल लो, एच सी बाई लैम्डा। एच सी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो, चलो इस सेक्शन में चलते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट एनर्जी, एनर्जी आप क्या लिखोगे, दिस इज 1242 नैनोमीटर के वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज हुई है, डन है। सो एच सी को हमने लिख दिया ये डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, दैट इज 1242 nanometer. So this will get cancelled, this will get cancelled, 1 electron volt. So the photon that is getting released is having energy of 1 electron volt. The incident photon must have a wavelength of this much. क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। एटम कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, सो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ओके, एंड इट अब्सॉर्ब्स द फोटोन, इसने फोटोन को अब्सॉर्ब किया, एंड कम्स टू एन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट तक जाएगा। अगर तुम सोचो कि यहाँ तक गया है, तो अगर जंप बैक करेगा तो हमारे पास एक ही एनर्जी गैप प्रेजेंट है, वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर ये n इक्वल टू 2 पे जाता है, देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, photon of 2 electron volt energy should get released, लेकिन यहाँ पे photon of energy 1 electron volt is getting released. So definitely सिर्फ यहाँ नहीं, वो यहाँ पे नहीं जा रहा, ये यहाँ से लेट से यहाँ गया है। अगर ये यहाँ जाता है तो ग्राउंड स्टेट में आने का बहुत सारा रास्ता है, आइदर इट विल कम बैक फर्स्ट फ्रॉम थर्ड टू 2 and then from 2 to 1. So in this case 2 photons will get released. Here we are just getting talked about one. So we are given that 1 electron volt of energy is getting released in form of photon. So it may happen when it is jumping from 3 to 2. समझ रहे हो? Then it can release energy, in it release photon of energy 1 electron volt, right? So definitely it must have jumped to n equal to 3. डन है? समझ रहे हो? यहाँ तक ये गया होगा, ये डायग्राम देखकर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, डन है। और नंबर ऑफ ट्रांजिशन तो आप इजीली निकाल सकते हो, जैसे जब n इक्वल टू 2 पे जाता है तो एक ही ट्रांजिशन है, क्योंकि एक ही एनर्जी गैप है, लेकिन 3 पर है तो तीन तरीके से वो ग्राउंड स्टेट तक आ सकता है। एक तो 3 से 2 एंड देन 2 to 1 एंड देन 1 कैन बी द केस वेयर इट इज डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम 3 to 1। ओके, सो 3 डिफरेंट फॉर्म, और ये नंबर आप इजीली निकाल सकते हो विद दिस फॉर्मूला nc2। So if your electron has jumped to nth state, then it will come back by how many different number of transitions, nc2। जैसे यहाँ पे n equal to 3 पर गया है, तो आप different transition निकालो 3c2, so 3 factorial by 2 factorial and this will give you 3। So there are 3 different ways in which it can jump back to the ground state. So there are 3 different probabilities of getting photons। okay, so 3 different तरह के photon हमें मिल सकते हैं, डन है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट मीन्स 1 से थर्ड तक गया है, और 1 से थर्ड तक जाने के लिए हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन टू द एटम इन द ग्राउंड स्टेट। सो 1 से थर्ड का आप एनर्जी डिफरेंस देख लो, दैट इज योर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सो एच सी इज इक्वल टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो यहाँ से आप इसको कट कर लो, दिस विल बिकम हाउ मच, 414। Yes, so lambda is equal to 414 nanometer. This is correct, right? So second one is also correct. Now let us move with the third one. An atom in the ground state has a collision with an electron, then emits a photon with a wavelength of this। ठीक है, चलो ये तुम्हारा एटम था, इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, एंड ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा। सो लेट्स से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इनॉड है, so it is transferring energy to the atom during the process of collision, and because of which
it then emits a photon with a wavelength of this. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोलिजन में जो भी एनर्जी मिला होगा एटम को ग्राउंड स्टेट में, उसकी वजह से दैट एटम मस्ट हैव जंप टू एक्साइटेड स्टेट एंड देन अगेन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट बिकॉज इट कैनॉट स्टे इन द एक्साइटेड स्टेट, राइट? क्योंकि दैट इज अनस्टेबल सिचुएशन. सो इट विल कम बैक इन द टाइम स्पैन ऑफ 10 to the power -8 and -9 सेकेंड. ओके, सो ये वापस तो आएगा और वही उसी की बात हो रही है. देन एमिट्स द फोटोन विद वेवलेंथ ऑफ दिस मच. सो इस वेवलेंथ का मतलब क्या है? एनर्जी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की फोटोन रिलीज हुई है. द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एनर्जी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो प्रीवियस क्वेश्चन को ही अगर आप फॉलो करोगे, देन फ्रॉम हियर it should go to here, and then only one transition will involve what one transition will involve photon getting released of energy equal to 1 electron volt, right? So first go में तो हमें ऐसा दिख रहा है कि okay, this should be receiving energy equal to 3 electron volt. डन है. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, इट्स नॉट सेइंग दैट द एटम विल इज रिसीविंग 3 electron volt. इट इज सेइंग द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एनर्जी ऑफ 3 electron volt. No, incident energy must have an energy of the range E नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 electron volt. क्योंकि ऐसा कोलिजन में नहीं कहा है कि ये सारी एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर रहा है. डन है. सारा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. So even if electron is having energy 4 electron volt, maybe during collision it is transferring its 3 electron volt to the atom. Even if electron is having 10 electron volt, maybe during collision it is transferring to the atom 3 electron volt. So the incident electron must have energy of 3 electron volt? No, it can have anything of this range. E not greater than equal to 3 electron volt. Less than नहीं हो सकता, less than में तो कोई chance ही नहीं है, but yeah, it should be greater than equal to this. So this statement won't be correct. You have to be careful. यहाँ पे must have लिखा है, इसलिए ये option गलत होगा. ठीक है. An atom in the ground state absorbs the photon, comes to an excited state, then emits the photon with a wavelength of this. The incident photon must have a wavelength of this. So atom ground state में है, इसके ऊपर लाइट फॉल किया, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सॉर्ट ऑफ थिंग इज हैपनिंग. एनर्जी इट इज रिसीविंग इन फॉर्म्स ऑफ लाइट. Photoelectric effect is not happening क्योंकि electron is not getting knocked out. Rather, atom is simply jumping to excited state. So solar radiation इसने absorb किया, and then because of that energy, it is reaching to excited state. Then again it will come back to ground state, emitting photon of wavelength this. It means of energy 1 electron volt. So the incident photon must have a wavelength of 1 electron volt. नहीं, 1 electron volt तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए इस एटम के पास कोई घर नहीं है. जैसे एक घर है तुम्हारा -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, दूसरा घर है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, और इस घर से पहले घर से दूसरे घर में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए. अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हो तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर कहीं भी जाने के लिए इसके पास कोई घर नहीं है. अगर घर नहीं है तो वो अपने ओरिजिनल घर को जहां पे वो है उसको वो लीव ही नहीं करेगा. समझ रहे हो? सो व्हेन इट विल रिसीव एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दे वोंट हैपन एनी एक्साइटेशन. फॉरगेट अबाउट this photon getting released because of de-excitation. Excitation ही नहीं होगा. समझ रहे हो? So this one is absolutely incorrect. No confusion, right? Now let us look at this question. This one is going to be very interesting. A system of positron and electron is called a positronian atom. Okay, the radii of positronian atom is expanded, but energy levels are reduced by a factor of x compared to hydrogen atom. Okay, so let us talk here about this positronian atom. देखो, इसमें हमें रेडियस को भी डिस्कस करना है इस एटम का और एनर्जी को भी. And how we can easily compare it with the hydrogen atom. So first we need to look at hydrogen atom things. ठीक है, चलो क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम इसको समझ सकते हैं. So whatever we already know, we can take the reference of that one in order to understand whatever new we are getting asked. Okay. So hydrogen atom की अगर आप बात करो, then hydrogen atom में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंड इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है. सो हियर इज द प्रोटॉन, एंड देन फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है.
एंड जब भी आप हाइड्रोजन एटम को पढ़ रहे होगे, वेदर यू यूज रदरफोर्ड मॉडल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन यू कंपेयर्ड देयर रेशियोज, जैसे टोटल एनर्जी को भी आपने निकाला एंड कंपेयर किया कौन किससे क्या है. सो in all those discussions, what you did is you took this nucleus at rest, and then you did what? You allowed electron, or you discussed like electron is moving in circle around this nucleus. That is what we have done, right? And why we are taking nucleus at rest? This is a question, right? So देखो, लेने के पीछे कारण यही है that this nucleus has a proton. I'm talking about hydrogen atom, okay? So, and proton has a mass of the range 10 to the power minus 27 kg, and this electron has a mass of the range 10 to the power minus 31 kg. And if you talk about center of mass of this hydrogen atom, that is center of mass of these two system क्या है तुम्हारा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, which is making this hydrogen atom, right? So इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आप कहोगे मैम इसका मास तो 10 टू द पावर 4 टाइम्स ग्रेटर है, तो आप मास, सेंटर ऑफ मास को यहीं पे ले लो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि ये यही है, एक्चुअली यही है, इससे बहुत ही लिटिल शिफ्टेड है, दैट लिटिल इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट? सो सेंटर ऑफ मास आप इसको लोगे, डन है. सो बेसिकली दिस इज हेवी, बहुत ज्यादा हेवी, इसलिए वी आर कीपिंग इट एट रेस्ट, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में आपने पढ़ा भी होगा, देर इज वन पोजिशन इन साइड द एटम विच इज सो हार्ड दैट वट एवर थिंग्स वी आर हिटिंग एट इट इज गेटिंग बाउंस्ड बैक, ओके? सो दैट पोर्सन वॉज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में काफी ज्यादा ग्रेटर है. इसलिए इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस में है उस स्पेस में तुम्हारा इजिली चीजें क्रॉस कर रहा था, लेकिन इन दिस फ्रॉम दिस सेंट्रल रीजन थिंग्स वर गेटिंग bounced back because of this heavy mass thing. Okay, so when you talk about proton and electron making the hydrogen atom, proton is at rest and electron is going around, and then we have यूज्ड सर्टेन थिंग्स लाइक, जैसे आपने जो भी रेडियस डिराइव किया है, एनर्जी डिराइव किया है, वेलोसिटी डिराइव किया है, इन सारे में जो आपने इक्वेशन यूज करा है, यू हैव मिक्स्ड बोथ रदरफोर्ड थिंग एंड बोथ थिंग, राइट? सो एक जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है वो है जैसे यहाँ पे ये प्रोटॉन के अराउंड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सो दिस इज ए सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स आप लोगों ने लिखा है mv² / r, and this is equal to ke² / r का स्क्वायर. And another equation is angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. And by using these two things, we have calculated Rn, En, Vn. Okay, we have done it, right? So ये जो expression तुम्हारा आया है वो कुछ ऐसा आया. डन है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, so I've written it. रेडियस ऐसा है, velocity ऐसा है और En ऐसा है. Now the thing is how we can translate it for the positronian atom. और पोजिट्रोनियन एटम में प्रॉब्लम क्या है अगर मैं हाइड्रोजन एटम के एक्सप्रेशन को यूज करना चाहूँ तो? दिस विल बी द फर्स्ट थिंग. तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसके पास जो एक पोजिट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास सेम है. और अगर मास सेम है, we don't have nucleus sort of situation where one is at rest and another is revolving around. Okay, so here we need to include rest mass concept, and why that I will first derive for you. ठीक है, so that आपको फ्यूचर में कैसे भी क्वेश्चन मिले, आपके पास एक हिस्ट्री होना चाहिए ऑफ हाउ, I mean, whatever we are going to use for positronian atom, how that has been derived or something like that. ठीक है, so इसलिए चलो एक केस लेते हैं. सपोज कर लो इसी केस को लेते हैं, E प्लस ले लो, E माइनस ले लो, एंड लेट से आई मीन इसको मैं M मास से रिप्लेस कर रही हूँ, इसको भी M मास से रिप्लेस कर रही हूँ, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सो दोनों का मास सेम है, सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा. लेट्स से मिडिल से ये डिस्टेंस आर है एंड ये डिस्टेंस भी आर है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या लिया? 2r लिया. ठीक है, आप याद करो ग्रेविटेशन को. ग्रेविटेशन में मैंने भी क्वेश्चन करवाए हैं. इफ यू आर गेटिंग सेट दैट देयर आर टू masses m1 and m2 and they are moving under the influence of gravitational force, उसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? Gravitational force is a central force that will take masses m1 and m2 into circle. Now ये तो पता है सर्कल में जाएगा, सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? सो m1 m2 के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे. तो चलो ये सेंटर ऑफ मास है,
ये होगा, यानी कि m2 will go in a circle of radius r1, m1 will go in a circle of radius r2. Similarly, electrostatic force central force है, m and m, that is electron and positron will go in a what, circular trajectory, and center of which will be at their center of mass. Sorted. So it will be here, and दोनों ही सेम रेडियस में जा रहा है क्योंकि दोनों का मास यहाँ पे सेम है. अब चलो एक काम करते हैं, सपोज कर लो ये जो m मास है, दिस m मास इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. सो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, आई मीन m मास, ये जो m मास है वो तुम्हारा ऐसे मूव किया, तो ये m मास इधर की तरफ ऐसे मूव करेगा जो यहाँ पे m मास है, डन है, और दोनों का सेंटर सेम है, ये पोजीशन. समझ रहे हो? सो लेट्स से दिस मास इज गोइंग विद वेलोसिटी v नॉट एंड दिस वन देन विल गो डाउन विद वेलोसिटी v नॉट, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स सेम है, सेम फोर्स की वजह से दोनों सर्कल में जा रहा है. समझ रहे हो? एंड दोनों का रेडियस भी सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है. इट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स को आप किससे इक्वेट करते हो, mv स्क्वायर बाय आर. इट मीन्स r इज सेम, m इज सेम, देन v हैज टू बी सेम, राइट? सो मैंने v नॉट को सेम किया. अब चलो एक ही किसी मास पे फोकस करूंगी, क्योंकि जो एक का कैलकुलेशन होगा वही दूसरे का होगा. सो लेट अस टॉक अबाउट द डायनेमिक्स फर्स्ट. सो अगर मैं डायनेमिक्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, m v नॉट स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू दोनों के बीच का फोर्स, दैट इज योर के ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर. नो, नॉट आर, टू आर होगा. ठीक है, सारी चीजें ध्यान से लिखना, नहीं तो गलत हुआ तो मुश्किल हो जाएगा. 2r का स्क्वायर कर लो आप, सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 4r का स्क्वायर. एक r को कैंसिल कर लो, सो दिस इज 4r. इट मीन्स m v नॉट स्क्वायर इज हाउ मच, m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई 4r. आई विल जस्ट टॉक अबाउट एनर्जी, ठीक है? उसके बाद हम जो भी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे, दैट वी विल ट्रांसलेट टू वेलोसिटी एंड रेडियस. ओके, सो मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगी, तो चलो करते हैं. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, that will be half m v naught square. If I talk about this system, because this system is making positronian atom, so if I talk about kinetic energy of atom, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 into m v naught का स्क्वायर, राइट? सॉरी, 2 into half m v naught का स्क्वायर, क्योंकि half m v naught square is energy of 1, of 2 it will be 2 into this, so this is equal to m v naught square. So kinetic energy तुम्हारा कितना आया, that is your k e square by 4r. समझ रहे हो? सो दिस इज दिस थिंग, काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सो दो चार्जेज है एट अ सेपरेशन 2r, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r. डन है. नेगेटिव बिकॉज वन इज having positive charge, another negative. Total energy तुम्हारा क्या होगा, that will be your this will be how much, okay, ke square by 4r with negative sign. अब आप बात कर लो हाइड्रोजन एटम की, सेम चीज की बात करो. सो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इस केस में तो प्रोटॉन तुम्हारा रेस्ट में है, न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, सो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग दिस वे. अब आप यहाँ पे बात करो चीजों की, ये तुम्हारा आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हमने उससे, ओके, सो लेट अस सिंपली राइट इट. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, आई मीन मैंने सर्कल का रेडियस आर लिया है, ठीक है? लेट अस नॉट टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के टर्म में, क्योंकि दोनों में फिर आपको डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है. लेट अस सिंपली टॉक अबाउट द सर्कल रेडियस. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, यहाँ भी मैंने पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को लिया है गोइंग अराउंड इन सर्कल ऑफ रेडियस r. ठीक है, तो दोनों में ये चीजें सिमिलर है. चलो, now let us talk about writing dynamics. So mv square by r you will be writing as ke square by r. ऐसा है ना, r square, right? So mv square तुम्हारा क्या हो जाएगा, that is your ke square by r. Am I right? Yes. So what will be the kinetic energy? Kinetic energy is half mv square. So this is equal to ke square by 2r. What will be the potential energy? So minus ke square by r. What is total energy? Uh, what it is? K minus ke square by 2r. आप देख लो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे टोटल एनर्जी में हाफ का फैक्टर आ रहा है, और यहाँ पे टोटल एनर्जी इज दिस. सो इसमें अगर आप हाफ का फैक्टर ऐड मल्टीप्लाई करते हो, देन यू विल बी गेटिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एटम, राइट? सो अगर तुम्हें आंसर सिंपली टिक करना है तो x तो हमें पता है हाफ 2 होगा,
समझ रहे हो? सो रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ x कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। सो हाफ का आई मीन अगर मैं आई मीन 1/x की अगर बात करूं तो x तुम्हारा 2 है। ओके, बट लेट अस नॉट गो दिस सिंपल। इसको एक काम और करते हैं। चलो मैंने यहाँ पे तो तुमने कंपेयर करके दिखाया, लेकिन इस पोजिट्रोनियन एटम में टू मास सिस्टम की जगह इसको एक मास सिस्टम में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। डन है, बिकॉज दैट इज हाउ वी इजिली डील विद सच क्वेश्चंस। सो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, जो कि आपने ग्रेविटेशन वगैरह में भी किया होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको सिंगल मास के बारे में बात करनी है, देन यू कैन रिड्यूस इट इनटू अ सिंगल मास बाय यूजिंग 1/m reduced is equal to 1/m1 plus 1/m2. So in this case, it will become a system of single mass, and that single mass will have value of m reduced. Okay, done है। and the second one will be at rest then. So इसको आप रेस्ट में मानोगे, and then m reduced is this one. Okay, तो चलो यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज योर प्लस ई एंड दिस इज योर हाउ मच माइनस ई, and this has a mass of m, this has a mass of m. I'm going to use m reduce, so 1 by mu, जो कि अपने स्प्रिंग मास सिस्टम में भी किया होगा, दो मास है जब सिंगल स्प्रिंग से अटैच्ड होते हैं। so 1 by m plus 1 by m, that is your 2 by m. so this is mu is equal to how much, m by 2. so we can deal with it like कि हमारे पास एक ही मास है जिसका वैल्यू कितना है, m by 2, and this is at a distance how much from the mass which we are taking at rest, it is at a distance of 2r. समझ रहे हो? सो यहाँ से ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो रेडियस हो गया डबल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2r का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि व्हाट इज एट रेस्ट from that whatever is the mass which is revolving, your reduced mass is at a distance 2 into r. डन है? सो ये है, और मास तुम्हारा हाफ हो रहा है। डन है? उस केस में आप इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हो, यू राइट इट एज m, हियर इट इज m by 2. सो डायरेक्टली वी कैन डू हियर वन थिंग। जैसे आप देखो, रेडियस को आप क्या लिखते हो, रेडियस को लिख रहे हो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। n इज कांस्टेंट फॉर बोथ, आई मीन n जो होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, पॉजिट्रोनियन के लिए सेम होगा, h n एप्सिलॉन नॉट एंड पाई n e। m is different, right? So radius is inversely proportional to m. Here m is becoming half, so radius will become what, double. इसलिए तो reduced mass concept जब हमने लिया तो हमें radius दिख रहा है यहाँ पे double। समझ रहे हो? सो पोजिट्रोनियन एटम में तुम्हारा रेडियस क्या हो जाएगा, डबल ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज क्लियर। अब देखो वेलोसिटी तुम्हें क्या दिख रहा है, वेलोसिटी तुम्हें सेम दिख रहा है क्योंकि ये पूरा ही कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी सेम, और किसकी वेलोसिटी सेम है, रिड्यूस्ड मास की नहीं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन का। यानी कि इस केस में जो मैंने ये लिया था ना, दिस इज v, एंड कहाँ लिया था, yeah, this v naught and this v naught. So I'm talking about this v naught. So this v naught is same as the velocity of electron in hydrogen like element in nth orbit. Okay, so आप अगर इस रिड्यूस्ड मास की वेलोसिटी की बात करोगे तो ये तुम्हारा v naught से जा रहा था, ये v naught से जा रहा है। ठीक है, सो इसके रिस्पेक्ट में इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ दिस वन, देन इट विल बिकम 2v naught. ओके, सो रिड्यूस्ड मास का वेलोसिटी तो डबल होगा, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट दोस इलेक्ट्रॉन, the velocity of electron inside the positronian atom, that will be same as velocity of electron inside the hydrogen atom. Okay, so you should be categorically clear with this one. Okay, बट रेडियस सेम होगा। आई मीन रेडियस क्या होता है, रेडियस इज बेसिकली द डिस्टेंस एट विच दोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इंटरैक्टिंग। अगर आप पोजिट्रोनियन एटम में भी जाओ तो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था तुम्हारा, 2r। सो इंटरैक्शन डिस्टेंस इज 2r। डन है? एंड orbiting radius was r for individual electron and positron। समझ रहे हो? लेकिन ओवरऑल अगर मुझे एटम के लिए रेडियस की बात करनी है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरैक्शन डिस्टेंस, दैट इज 2r, जो कि रिड्यूस्ड मास में डायरेक्टली दिख भी रहा है, दिस इज 2r। ओके, सो या यू हैव टू बी क्लियर विद दिस वन। सो दिस इज रेडियस तुम्हारा डबल होगा, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो सेम होगा, बट अगर रिड्यूस मास की बात कर रहे हो डबल होगा। एनर्जी तुम्हारा क्या दिख रहा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, सो यहाँ पे मास हाफ हो रहा है, एनर्जी में हाफ का फैक्टर आएगा। सो दैट इज देयर। ओके, चलो अब ये हमारा क्लियर है।
Now let us talk about next. Is it true to say that entire spectrum of positronian atom will be shifted towards longer wavelength compared to hydrogen atom? So spectrum of positronian atom. Hydrogen का spectra हमें कैसे मिलता है? When atom absorbs energy, it emits, and then we get to see absorption and emission spectra. Okay, so it has to do with the energy gaps. Okay, so अगर hydrogen atom के लिए मैं पहले level की energy लिखूं, कितना लिखूंगी? -13.6. अगर पोजिट्रोनियम के लिए लिखूं, हाफ होगा इसका, सो दैट विल बिकम हाउ मच? 6.8, राइट? सो दिस इज -6.8. आप सेकंड की बात कर लो, इसका सेकंड क्या होता है? -3.4. ये कितना होने वाला है तुम्हारा? -1.7. आप इन दोनों के गैप का डिफरेंस ले लो, कितना होगा? दिस इज योर 5.1, राइट? या एंड ये कितना होगा तुम्हारा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस गैप इज ग्रेटर. गैप ग्रेटर मीन्स एनर्जी और हाईली एनर्जेटिक, आई मीन यहाँ से जो फोटोन रिलीज होगा दैट विल बी हैविंग हायर एनर्जी देन दैट ऑफ फोटोन गेटिंग रिलीज्ड इन दिस ट्रांजिशन, राइट? सो फोटोन की एनर्जी जो है वो वेवलेंथ से क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो यहाँ पे जो वेवलेंथ रिलीज होगा विल बी ऑफ शॉर्टर वैल्यू, और जो यहाँ रिलीज होगा विल बी ऑफ लॉन्गर वैल्यू. So definitely spectrum of positronium will be shifted towards longer wavelength compared to hydrogen atom. Okay. So yeah, I hope it is clear. I hope आप समझ पा रहे हो, but in case you're having doubt, you can let me know in the comment section. ठीक है? Now let us solve this question, and this will feel very easy because now we are familiar with that positronian atom. Okay, so let us start with reading the question. A hydrogen atom initially at rest in its ground state, so it has no kinetic energy, absorbs the photon of frequency mu1 and ejects the electron with a kinetic energy of this. So हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, यानी कि इसके पास एनर्जी क्या है तुम्हारा? I mean it has no external velocity sort of thing. So energy will be purely because of those interaction energy, right? So -13.6 electron volt. And then it is receiving light of frequency mu1. So additional energy, it is receiving h mu1. So its total energy will become how much? This much, right? And because of this, what is happening? इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट, एंड इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट विद काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखो सबसे पहले तो जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, तो एच म्यू1 का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट part will go into I mean cancelling out this attractive interaction. So सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को वो जीरो करेगा, it will take it out, and still electron is having energy of 10 electron volt. समझ रहे हो? इट मीन्स एच म्यू वन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन ओनली इट इज पॉसिबल, राइट? क्योंकि अगर तुम्हारा एच म्यू वन 13.6 के बराबर होता है, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल सिंपली कम आउट and stay at rest. But here electron is having additional energy. Remember the photoelectric effect, k max का value निकालते थे हम, right? So this here is equal to how much? K max is 10 electron volt. So that will be equal to whatever this electron was having in the orbit plus energy of that incoming light, and that is equal to here 10 electron volt. Okay, so this is simple energetics. The electron then combines with a positron at rest to form a positronian atom. अब देखो क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग है. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज हैविंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज कंबाइनिंग विथ अ पोजिट्रॉन विच इज हैविंग नो एनर्जी. सो ये रेस्ट में है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है. सो दिस इलेक्ट्रॉन विद दिस मच काइनेटिक एनर्जी इज कंबाइनिंग विद दिस वन, एंड ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? पोजिट्रोनियन एटम. और पोजिट्रोनियन एटम बनेगा तो क्या होगा? इमेजिन करो तुम्हारे पास दो, एक इलेक्ट्रॉन है एक पोजिट्रॉन है, बोथ आर एट रेस्ट, ओके, एंड देन दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म पोजिट्रोनियन एटम. In that positronian atom, what will be the energy? I mean, it will, if it is getting formed in the ground state, then energy of that atom will be minus 13.6 divided by 2. That is your minus 6.8 electron volt. और इसका मीनिंग क्या है? देखो, जब भी जैसे हाइड्रोजन एटम बन रहा है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलकर हाइड्रोजन एटम बना, और ग्राउंड स्टेट में अगर मुझे एटम मिला है तो उसकी एनर्जी हुई है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों पास आए, अट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कम हुई, एंड इट देयर एनर्जी गॉट रिड्यूस्ड बाय दिस फैक्टर टू बिकम हाइड्रोजन एटम. और जब भी कोई चीज स्टेबल बनता है, देन एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन दैट प्रोसेस.
बिकॉज स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है, यू विल ट्राई टू बी एट द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, राइट? जैसे आप मैकेनिक्स में भी पढ़ते होगे कि एक बॉल को यहाँ रख दिया, दूसरे को यहाँ रख दिया, बताओ कौन स्टेबल है? इसको धक्का दोगे, ये वापस से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, इसको धक्का दो, ये वापस से यहाँ पहुंचेगा। सो दिस इज स्टेबल। और अगर एनर्जी के टर्म में देखो तो देखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इसका पॉजिटिव, समझ रहे हो? सो और नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है क्योंकि somehow that is helping that things whichever is involved in the process to become more stable. So इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन दूर दूर रह के जितना स्टेबल नहीं है, उतना से ज्यादा स्टेबल दे आर व्हेन दे आर फॉर्मिंग पोजिट्रोनियन एटम। दैट मस्ट बी द केस, ओके? सो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप बात करते हो ना कि ग्राउंड स्टेट में उसका एनर्जी इतना है, it means when positronian atom is getting formed in the ground state, this much energy is getting released in the process. So उस process में electron was already having 10 electron volt energy, and then this much energy is getting released more. So how much energy is there with that positronian atom? So आप कहोगे 10 plus 6.8, माइनस साइन कहने का मतलब एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड, ओके? सो दिस मच एनर्जी, एंड इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है देखो, पोजिट्रोनियन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट फॉर्म हुआ, इसलिए मैंने 6.8 ऐड किया, एंड साइमल्टेनियसली एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू टू, ओके? सो इतनी एनर्जी इसके पास है, इसलिए दिस ग्राउंड स्टेट एटम मस्ट बी गेटिंग एक्साइटेड, वो एक्साइट हुआ, ठीक है? क्योंकि उसके पास देखो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है, स्टिल इट हैज वैल्यू ऑफ हाउ मच, 10 मोर, okay? So it will get excited. In short, it is getting excited. The center of mass of resulting positronian atom moves with a kinetic energy of 5 electron volt. So let us plainly talk about positronian atom. उस atom के पास कितनी energy है? 10 plus 6.8. It is getting excited, and de-excitation में कितनी energy release हुई? H mu 2. And still that atom is left with 5 electron volt of energy. It means H mu 2 plus 5 electron volt is द एनर्जी इक्वल टू 10 प्लस 6.8, क्योंकि आप ध्यान से सोचो एटम के पास टोटल एनर्जी इतनी थी, ठीक है? और इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा इन ऑर्डर टू एक्साइट, and so some of it got utilized in exciting, and then it got de-excited, and whatever energy was utilized got released, and that released energy is this much, and then that atom is having kinetic energy 5 electron volt. So this plus this is this, क्योंकि आप ऐसा सोचो कि अगर तुम्हारा एटम एक्साइट नहीं होता है तो दिस होल 10 plus 6.8 will be with the atom in forms of in the form of kinetic energy, but in the form of kinetic energy this atom is having energy only 5 electron volt. So rest is getting utilized in what? Rest is getting utilized in this thing, in exciting, okay? So I will say 10 plus 6.8 is equal to h mu 2 plus 5. स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद कि मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं यूज किया, तो आप ये सोचना कि जब भी इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पास मिलके एटम बनेगा, इन दैट प्रोसेस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज। रिमेंबर दोज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वहां पे आप एनर्जी नेगेटिव में लिखते हो, क्यों लिखते हो? क्योंकि उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, देन so similar thing you can put in here, okay? So this will be equal to this much, and now this is h mu 2, right? This is equal to how much? 5. No, h mu 2 is 5 plus 6.8, so that is your 11.8. चलो आगे पढ़ते। It is given that positron has the same mass as that of electron. Positronian atom can be considered as Bohr atom. So सारी चीजें हमने consider कर ली है just in taking energy of positronian atom in the ground state to be minus 13.6 by 2, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था तो मैंने directly put किया, in which the electron and positron orbit around their center of mass. Yes. Consider no other energy lost during the whole process. Difference between two photon energies. तो हमें h mu 1 कितना मिला है देखो, 10 plus 13.6, 23.6, and h mu 2 कितना मिला बताओ? That is 11.8, right? So this is 11.8. इन दोनों का difference कितना होगा? So this is going to be 8 and this is going to be 1, 11.8 electron volt. So this will be your answer. Okay. So actually in order to answer these questions, you need to have a basic idea of कि कोई भी चीज फॉर्म हो रहा है तो ग्राउंड स्टेट में फॉर्म हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है,
अगर कहा होता सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म हो रहा है, उसका क्या मीनिंग होता, समझ रहे हो? सो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स मैटर. Now let us talk about this beautiful question. Okay, through this one we are going to learn a lot. So let us start with this. In an electron capture process, so first of all, what is this process? That we will discuss. Okay, so let us first discuss this one. Then only we will be able to understand this. जैसे आपने न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा होगा. व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बिकम लेसर, राइट? सो वो लेस स्टेबल होने लगता है कर्व तुम्हारा. जैसे कर्व ऐसे ऐसे अगर मैं बनाऊं तो ऐसे ये डिप करता है, राइट? सो ये डिप कर रहा है मीन्स बाइंडिंग एनर्जी घट रही है. बाइंडिंग एनर्जी घटने का मतलब स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग. सो लेस स्टेबल होने लगता है. और ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा प्रोटॉन का नंबर बढ़ने लगता है. सो लेट अस नॉट गो इनटू डिटेल देयर, बट इन I mean, here we need to discuss this electron capture thing. So basically हमारे पास ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है. डन है. एंड इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल व्हाट इट वांट्स टू डू, ये एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन ज्यादा है मीन्स एटॉमिक नंबर ज्यादा है. सो ज्यादा एटॉमिक नंबर से कम की तरफ वो भागना चाहेगा. एंड फॉर दैट यू नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो व्हाट इट डज इज, एक तो रास्ता इसका ये है कि ये बीटा प्लस डिके करे. एंड इस डिके में तुम्हारा क्या होता है, इफ यू, आई मीन लेट मी लुक एट द एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ इसको. सो बीटा प्लस डीके का एक्सप्रेशन है तुम्हारा, प्रोटॉन विल गेट कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन प्लस दैट इज योर न्यूट्रिनो समथिंग, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक दिस. और इस प्रोसेस में जो तुम्हारे मास डिफेक्ट है, आई मीन दिस इज, जब ये प्रोसेस होगा देन initial nucleus is called as parent nucleus, and then the one that is getting created is called as daughter nucleus. Done है? So this parent nucleus should have mass greater than that of daughter nucleus, क्योंकि then only mass defect will be positive, and then only this reaction will be favorable. क्योंकि if delta m is positive, energy getting released will be positive, that is energy is getting released, so favorable process. अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है देन दैट इज नॉट सॉर्ट ऑफ फेवरेबल. डन है. सो ये ऐसे जा सकता है. बट यहाँ पे क्या होता है ना, तुम्हारा ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है और डॉटर न्यूक्लियस है, इनके बीच में मास का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट. ओके, बट जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, जैसे न्यूक्लियस है, व्हाट इट डज इज, इससे सबसे क्लोज में तुम्हारा के सेल होगा. और तुम्हें भी पता है दैट these electrons are not exactly confined in this orbit. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखा होगा. सो सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्प्रेडेड होता है. So you won't say with 100% surety that okay it is here. It can be here, sort of. So electron clouds is there, and in that cloud it can be found anywhere. So ये न्यूक्लियस मौका पाकर उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है. और कैप्चर करने के बाद ये करेगा क्या, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलेगा एंड देन इट विल फॉर्म न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. सो इस प्रोसेस में जो तुम्हारा एनर्जी सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड है, जैसे इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिक्वायर्ड है. और यहाँ पे एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि यू जस्ट सी हियर, प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से क्या होता है तुम्हारा, ज्यादा होता है. सो ओवरऑल इस इक्वेशन को जब आप देखोगे ना, तो इसका मास डिफेक्ट नेगेटिव है. डन है. सो मास डिफेक्ट नेगेटिव है, इट मींस यू नीड टू सप्लाई एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस टू हैपन. और वो एनर्जी कहाँ से आता है, पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के पॉजिटिव मास डिफरेंस में. और यहाँ पे वो पॉजिटिव मास डिफरेंस दो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे उससे भी कम, काफी कम. ओके, सो ये प्रोसेस में तुम्हारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है. जैसे यहाँ पे जो तुम्हारा एनर्जी रिक्वायर्ड है, उससे बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पे होता है. और इसलिए अगर पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में मास डिफेक्ट ज्यादा नहीं भी होता है, तो भी दिस प्रोसेस विल बी हैपनिंग. सो इसलिए क्या होता है कि हेवियर न्यूक्लियस, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है एंड इट वांट्स टू बी स्टेबल, it captures electron. So that is called your electron capture process. Okay. So now let us deal with the question. A nucleus captures an electron from K cell of the atom. The electron is having a binding energy of B naught. What is the meaning of binding energy? जैसे आप कहते हो कि हाइड्रोजन एटम है,
या फिर न्यूक्लियस की बात कर लो, सपोज कर लो हीलियम न्यूक्लियस की मैं बात करती हूँ। सो इसके हीलियम न्यूक्लियस में क्या होगा, इसके पास दो प्रोटॉन होगा, दो न्यूट्रॉन होगा। सो ये चार nuclear things came together in the boundary of 10 to the power minus 15 meter, and इनके इतने पास आने की वजह से large amount of energy is getting released, and that is why it is becoming stable, and that released energy is the binding energy. So whatever energy was released in the formation, same amount of energy you need to supply in order to separate these nucleons. Okay, so कोई भी चीज जब स्टेबल होता है उसकी एनर्जी घटती है। जैसे आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, ऐसा कर्व है, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे बॉल है, कौन ज्यादा स्टेबल है? डेफिनेटली दिस वन, क्योंकि इसको आप धक्का देते हो ये कभी वापस नहीं आएगा, इसको आप धक्का देते हो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। डन है? So I mean this is unstable because this is having higher energy, at greater height it is. So more energy less stable, less energy more stable sort of thing. So binding energy होता है कि जब कोई भी चीज बन रहा है, किसी भी स्टेट में पहुंच रहा है, then whatever energy was released is the binding energy. Okay, और अगर आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी means when electron is there pushed inside the K cell, I mean K cell में इलेक्ट्रॉन को देखा गया, it means electron has been managed here, and in this process some energy must have been released, and that energy released is your how much, minus 13.6 electron volt in case of what, in case of hydrogen atom. सो हाइड्रोजन एटम में जब आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, और आप कहते भी हो कि जब इसको आयोनाइज करना है, बाहर निकालना है, तो इतनी ही एनर्जी देनी होगी। सो दिस इज इट्स बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज द एनर्जी विथ विच इट इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस सॉर्ट ऑफ, राइट? सो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है तुम्हारा, बी नॉट। Followed by this capture of electrons, several photons are emitted due to electronic transition. What will be the sum of energy of all such photons emitted? अब देखो, सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा एनर्जेटिक्स पे और फोकस करूंगी। जैसे आप सोचो, जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, सो इसके यहाँ पे ये बॉन्डेड है, राइट? इस घर में है, वो बॉन्डेड है, और न्यूक्लियस इसको अपने पास बुलाकर, आई मीन इट इज जस्ट ईटिंग इट अवे, राइट? सो एक प्रोटॉन के साथ ये मिल जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, सो इसको यहाँ से हटाना है, यानी कि जितनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। डन है? सो सॉर्ट ऑफ इस प्रोसेस में P प्लस, I mean not, I mean what process is happening? P plus electron is getting converted to neutron plus neutrino sort of thing, right? So इस process में मैंने अभी अभी बोला कि तुम्हें energy का requirement होता है, ठीक है? And that energy is coming from where? So basically ये एनर्जी तो डीप डाउन हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये पेरेंट न्यूक्लियस इज गोइंग इनटू सम अदर न्यूक्लियस जिसका जेड नंबर 1 से डिक्रीज हुआ है। सो इसका कुछ मास डिफेक्ट होगा, देन क्यू वैल्यू विल बी हाउ मच, क्यू वैल्यू विल बी योर डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। ओके, सो इस क्यू वैल्यू का आई मीन इस जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस में, व्हेन parent nuclei is getting converted into daughter nuclei, in that case this much amount of energy is released, और यही energy का कुछ portion will get utilized in discarding here the binding energy, यानी कि यहाँ पे जो भी बिनॉट से ये bonded था। so आप जब कहोगे कि इसके पास जो भी यहाँ पे न्यूट्रिनो बना, और जो भी I mean that neutrino will carry most of the kinetic energy, so that will have how much energy to carry with itself, that will be q minus v naught। समझ रहे हो? सो आप ये सोच रहे होगे कि मैम कुछ एनर्जी तो यहाँ भी गया ना, प्रोटॉन जब आपका इसमें कन्वर्ट हुआ, सो दैट इज क्वाइट द इंटरनल प्रोसेस। ओके, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है यू इंक्लूड इट, अदरवाइज आई मीन जब ये तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड आई एम सेइंग डेल्टा एम सी स्क्वायर, उसमें सारी चीजें ऐड हो रही है, समझ रहे हो? सो ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्यू विच इज द एनर्जी गेटिंग रिलीज in this electron capture process, then b naught will get utilized, और वी नीड टू सब्सट्रैक्ट बी नॉट, क्योंकि बी नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुआ है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए इन ऑर्डर टू कैप्चर इट। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो हमने समझ लिया। नाउ द क्वेश्चन इज फॉलोड बाय दिस कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे क्वेश्चन में इस चीज पे उतना फोकस करने के लिए नहीं कहा है, हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब कैप्चर हो जाएगा, सेवरल फोटोन्स आर इमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ये के सेल है, ओके। सो इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एनर्जी, सपोज कर लो मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ, इसमें तो ऐसा होगा नहीं वैसे, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, क्योंकि इसके एनर्जी स्टेट्स के बारे में मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसका दूसरा घर यहाँ है, तीसरा घर यहाँ है, चौथा, पांचवा, ऐसे, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं इसको नहीं यूज करती हूँ। कोई भी एनर्जी आप ले लो, -x1 ले लो, ठीक है, इस स्टेट की एनर्जी। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये चला गया, न्यूक्लियस उसको खींच लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी। और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जरूर कोई आएगा, क्यों? क्योंकि देखो, दिस इलेक्ट्रॉन वॉज इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट, क्योंकि इस स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, और इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, यानी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल बी फाउंड इन दिस ग्राउंड स्टेट। सो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। अब यहाँ पे वैकेंसी हो गया, सो अगेन इसको मौका मिला अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये फिर यहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ वैकेंसी है, इधर वाला आ जाएगा। सो सॉर्ट ऑफ वाटरफॉल कैस्केड जैसा सिचुएशन होगा, समझ रहे हो? मीन्स इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन जंपिंग, और ये जंप जंप करके तुम्हारा फाइनली ये एक न्यूट्रल एटम जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, सो इसका कन्फिगुरेशन कैसा होगा, 2 8, ओके 11 लेती हूँ, 2 8 1, कैन आई राइट लाइक दिस? या आई कैन। सो 2 8 1, ये जो अंदर का एक इलेक्ट्रॉन था ये गया, तो आई मीन यहाँ पे इस एक को फिल करने के लिए आएगा दूसरा। फाइनली जो आउटर मोस्ट में वन था, वो वन तुम्हारा आउटर मोस्ट में नहीं, उसके नेक्स्ट में दिखेगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कैप्चर हो चुका है। सो वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट देयर, एंड उस इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन मिलकर तुम्हारा क्या हुआ है, न्यूट्रॉन भी बना है। सो ओवरऑल उस एटम के साथ हुआ क्या, प्रोटॉन भी घटा, तो इलेक्ट्रॉन भी घटना चाहिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, राइट? सो ये जो 2 1 हुआ था, वो वैकेंसी फिल हो जाएगा बाई ट्रैवलिंग ऑफ ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स, डन है। और फाइनली जो आउटर मोस्ट सेल में एक था, वो एक नहीं दिखेगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो एडजस्ट हो गया है सॉर्ट ऑफ। सो कैस्केड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन होगा। अब इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी, आई मीन जो भी फोटोन रिलीज हुआ है उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ हुआ होगा तो इतनी एनर्जी, इसमें इतनी एनर्जी, इसमें इतनी एनर्जी, इसमें इतनी, एंड सो ऑन। ऐड करना मैनुअली इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वी विल से दैट कि यहाँ पे वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ, कितनी एनर्जी देने की वजह से वो वैक्यूम क्रिएट हुआ। So if it will give plus x1 amount of energy because of which vacuum created, and due to this vacuum, this waterfall sort of situation got arised, right? So I mean, this situation is here because there was vacuum created here, and vacuum came because plus x1 amount of energy was supplied here. So whatever you have supplied will come back, sort of, from the electronic transition. So we will say b naught amount of energy will get released in all these electronic transitions in form of photon, okay? So यही होगा, आई मीन दिस विल बी दिस थिंग, दिस विल बी द थिंग, ओके। सो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है उस पर आप ज्यादा फोकस नहीं करो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर क्यू वैल्यू दिया है, देन यू सिंपली नीड टू टॉक अबाउट कि तुम्हारे पास एक पेरेंट एटम था एंड दिस इज बिकमिंग अनदर एटम, ओके, जिसको हम डॉटर एटम कहते हैं। सो इस प्रोसेस में अगर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, डोंट फोकस ऑन दिस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का जो इक्वेशन हो रहा है, क्योंकि दैट विल कॉम्प्लिकेट थिंग। ये तुम्हारा इसके इंटरनल प्रोसेस में आ चुका है, ठीक है। सो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये एनर्जी इतना हुआ। एंड देन इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी यूज हुआ, सॉरी, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुआ क्यू, एंड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने में बिनॉड अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया था। सो ओवरऑल Q minus B naught amount of energy is available with the daughter nuclei. That is what you will say, okay? And again, if you talk about कि वो फोटोन वाली एनर्जी, तो वो तो फोटोन के साथ जा रही है, समझ रहे हो, जो भी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट दैट इज गोइंग अवे सॉर्ट ऑफ, ठीक है। So yeah, this is this one. If you get any such sort of question, you can let me know also. I will be also interested in that question, okay? So yeah, I hope everything is clear, but in case you're having any doubt, please let me know in the comment section. Okay. Thank you. Take care of yourself. Bye.